Hi. So, we all have trust issues and we need to stop pretending that we don't. Because everybody I know is facing this trust issue in some area of their life, especially when it comes to relationships. And even in my case, in my life, I have gone through many such instances where me myself, I was there and I was not able to accept the fact that it's actually a big problem. It kind of became like a badge of honor, where I was proud that I am not trusting anybody. Welcome to the Unchained Money. Let's talk about it. Since we were young, we have been collecting enough data by now to actually really face that challenge when it comes to trusting someone. It all starts with a shift where you start seeing patterns in your behaviors, where you feel like it's okay, I can manage myself, I don't need to ask for help, it's okay, I don't have to expect anything from anybody, it's okay, I can manage. And that becomes a point where you only trust yourself and nobody else in this whole world. It comes down to that. So, me personally, I've been there and I still face that sometimes in my life, and it's very difficult to completely erase that pattern from your life, to be honest, because it's not an overnight thing. You can just change immediately and start trusting people around you. So, how does this exactly start? Where did you stop believing that people can actually be nice to you and they can be trusted? I would say that it's rarely a one big betrayal sort of thing. It's usually 100 small micro disappointments collected, accumulated over the year that actually brings in that behavior from within you. Okay, when we are younger, we are naive and we start out giving 100% trust out to the people around us. You actually trust anybody and everybody, right? When we were kids, we did that, and we were giving our 100% trust upfront without anybody even asking us for that. After getting burned a few times now, like, we flip the script in our head somehow, because that is how we are designed as humans, to create defenses against things that looks unpredictable and that hurts us. And we just want to keep that betrayal energy कि किसी को भरोसा नहीं कर सकते, ये सारी बातें हम थोड़ा ना हमसे दूरी रखना चाहते हैं. सो इट्स अ बेसिक टेंडेंसी वेयर वी स्टार्ट बिल्डिंग आर डिफेंसेस अराउंड एंड देन वी टेल आवर सेल्स, create a script. मैंने भी किया है ये. I have also created that script in my head that now everyone starts at 0%. I do not have to give that 100% trust upfront that I used to. I'm not going to do that anymore. And from there on, it was like the people in my life, they had to earn their way back up to be at that level where I can actually trust them. So I completely get it. ऐसा नहीं है कि जिस पे ट्रस्ट नहीं किया सिर्फ उसी को दुख हुआ है. जो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है उससे भी उतनी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिल्ड रिलेशनशिप्स विद पीपल अराउंड यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो ट्रस्ट ना कर पाना किसी पे, दैट शोज इन योर बिहेवियर. यू बिकम लिटिल पैरानॉइड, यू बिकम लिटिल डिफेंसिव, एंड यू आर ऑलवेज ऑन दैट मोड कि अब कभी भी कहीं से भी उड़ता हुआ तीर आ सकता है धोखे का, एंड आई हैव टू फेस इट. सो दैट बिकम्स अ रियल बिग चैलेंज इवन फॉर द पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू ट्रस्ट. जिस पे ट्रस्ट नहीं किया उसे तो दुख हुआ ही हुआ है, बट इवेंचुअली जो नहीं कर पाता उसे भी उतना ही दुख होता है. गाइज, बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग यू. सो ट्रस्ट इश्यूज हम सबके हैं, एंड इट्स हाई टाइम दैट वी स्टार्ट एक्नॉलेजिंग दिस फैक्ट एंड स्टॉप मेकिंग इट अ बैच ऑफ ऑनर कि ये बहुत अच्छी बात है. आई डोंट ट्रस्ट एनीवन ईजिली सो दे कांट फूल मी. दैट एक्चुअली इज़ अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स, जिसे हम एक बहुत अच्छी क्वालिटी कह के अब हम मतलब उसे ना अपने पर्सनैलिटी का एक पार्ट बना चुके हैं, बट दैट इज़ रियली नॉट healthy for us. And जब ऐसा हो जाता है that you actually wait for people to prove themselves so that they can earn their way back in your list where you can actually start trusting them. ये सब करते करते the irony here is that when you make people jump through hoops to earn basic trust, actually in the process you push away the people, the genuine connections, the healthy people, and you kind of complicate the situations and relationships that you have with those healthy, genuine people around you. Okay, and we end up attracting manipulators instead, and these manipulators are the people who actually know how to play the game. अगर आप अपने दिमाग में एक स्क्रिप्ट बनाओगे कि नहीं ये सारी चीज़ें अगर उसने की है मतलब yes he deserves my trust or she deserves my trust. If there is any rule in your head, believe me people, there are people around in the world जिसे ये गेम खेलना आता है. मतलब नो मैटर कि आपका वो क्वेश्चन पेपर ऑन ट्रस्ट कितना डिफ़िकल्ट सेट किया आपने, लोग हैं ऐसे इस दुनिया में जिनको चीट कोड पता है. दे कैन एक्चुअली प्रिटेंड
एंड दे कैन एक्चुअली कन्विंस यू दैट येस आई एम ट्रस्ट वर्दी। उन्हें ये भी पता होता है कि नहीं यार, ये तो मुझे ट्रस्ट के लिए टेस्ट कर रही है या टेस्ट कर रहा है, सो आई बेटर एक्ट नाउ। सो मैंने भी ये रियलाइज़ किया कि ये पूरे प्रोसेस में मेरा जो भी ये टेस्ट चल रहा है, मतलब मैंने एक टेस्ट एग्जामिनेशन सेट कर दिया है, लोग आएंगे प्रूव करेंगे तभी ट्रस्ट करूँगी, बट इस प्रोसेस में हुआ ये, जेन्युइन कनेक्शंस वेयर पुश्ड अवे एंड देन यू एंड अप मीटिंग सम पीपल हु प्ले विद योर माइंड एंड देन दे कन्विंस यू कि अब ट्रस्ट कर सकते हैं। सो यू डिड, है ना, ऐसा होता है, वी डू ऑल्सो। ये सारी चीज़ें सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाती है, नथिंग हेल्प्स यू आउट। एंड आई टेल यू, इन सब में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है वो ये हाइपर इंडिपेंडेंस माइंडसेट। इंडिपेंडेंट होना गलत नहीं है, यू डू नॉट हैव टू चेंज योर सेल्फ एंड बिकम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन समबडी, बट इमोशनल डिपेंडेंसीज जो होती है उसके लिए हम जैसे लोग जो होते हैं, जो ट्रस्ट नहीं कर पाते, उनके लिए इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट करना ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक हाउ वी कैन एक्चुअली स्टार्ट ट्रस्टिंग पीपल, बिकॉज उससे काफ़ी ज़्यादा वेट जो हमने हमारे दिमाग पे डाला हुआ है वो ख़त्म तो हो यार। द मोमेंट यू लिफ्ट दैट वेट, इट्स गोइंग टू बी क्रेजी, बिकॉज पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी हम इसी प्रेशर के अंदर जीते आए हैं कि हमें बहुत ही बिग डील बना देना है इस ट्रस्ट का, मतलब ये ईजिली नहीं देना है किसी को। तो वो बहुत बड़ा प्रेशर होता है एंड आई कैन फील इट। इफ़ यू आर रियली रेजोनेटिंग विद मी नाउ ऑन दिस पॉइंट, देन बिलीव मी, आई एम ऑल्सो देयर, आई हैव बीन देयर। सो मैं इसलिए कह रही हूँ ये हेल्दी है नहीं। हाइपर इंडिपेंडेंस इज़ अ ट्रैप एक्चुअली। हाइपर इंडिपेंडेंस अच्छा लगता है बट देखने में, इन रियल लाइफ उसके लॉजिकल एप्लीकेशंस अगर आप देख लो, डस नॉट वर्क आउट, इट बैकफायर्स गाइज, इट बैकफायर्स। एंड एज आई वॉज सेइंग दैट आई डोंट ट्रस्ट एनीवन, आई ओनली ट्रस्ट माई सेल्फ काइंड ऑफ अ थिंग, it became a weird badge of honor kind of a thing, मतलब pat on your shoulders if you are like that type of thing in the society, and eventually people only encouraged others to become like that। मतलब हमेशा ये कहते थे कि easily trust मत करो, अपनी आंखें खुली रखो वरना धोखा मिल जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस वजह से इतना पैनिक क्रिएटेड है ना मार्केट में ऑलरेडी, जिस वजह से यू कैन नॉट फाइंड पीपल टू मोटिवेट यू इनफ टू एक्चुअली स्टार्ट बिल्डिंग दैट क्वालिटी इन यू जहाँ पे आप ट्रस्ट कर सको। एंड मेरे हिसाब से जितना मुझे समझ में आता है, मुझे लगता है कि हमें बस ये समझने की ज़रूरत है दैट हाइपर इंडिपेंडेंस इज़ नॉट इमोशनल मैच्योरिटी। इमोशनल मैच्योरिटी हैज़ मैनी मोर डिफरेंट लेयर्स। हाइपर इंडिपेंडेंस इज़ नॉट वन ऑफ दैट। इंडिपेंडेंस इज़, हाइपर इंडिपेंडेंस इज़ नॉट, एंड रैदर इट इज़ जस्ट अ प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट द वल्नरेबिलिटी, बिकॉज हमें वल्नरेबल होना नहीं है, वल्नरेबल होने का दम हम रखते नहीं हैं, तो इसीलिए हमें अब रहना वैसे ही है। That is the only thing, and because there is glory, we have glorified it, तो अब हमें वैसे रहने में मज़ा आने लगा है बस। And basically being unable to trust anybody actually does not make you strong। ऐसा लगता है कि हम strong बन चुके हैं, but वो strong तो नहीं बना रहा है हमें, ये actually अंदर से ना isolate कर रहा है पूरा। मतलब it is just isolating us to an extent where we have our own mental केज। एंड ये जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का वेव चल रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम इसे एड्रेस करें। मतलब क्यों वहाँ तक जाना, लेट्स वर्क इट आउट हियर राइट नाउ। वी डू नॉट हैव टू गेट कंफर्टेबल बीइंग इन दैट केज दैट वी हैव बिल्ट इन आवर हेड फॉर आवर सेल्व्स, बिकॉज वो कॉन्सिक्वेंसेस से बने हुए केज है। इट्स नॉट दैट कि वो तुम्हारे लिए हेल्दी है। बचपन से जहाँ जहाँ आप डिसअपॉइंट होते गए वहाँ वहाँ आपका ट्रस्ट टूटा, बस यू डिसाइडेड कि अब तो मैं नहीं कर रही, वो मुझे क्या धोखा देगा, मैं उसके पहले ही निकल जाती हूँ। That is what happened, to be honest, huh? So this mindset has never helped me, and मुझे लगता है शायद आप लोगों को भी यही लगता होगा। बताना मुझे comments में लेकिन ज़रूर, whatever you guys think about this। and trust नहीं कर पाना किसी को, इसका root cause अगर मैं आपको बताऊंगी जो मैंने फिगर आउट किया है, दैट इज़ एक्चुअली वेरी शॉकिंग। इट्स नॉट अबाउट द पर्सनस पर्सनैलिटी, इट्स अबाउट आप अपने जजमेंट पे ट्रस्ट नहीं करते। इट मीन्स दैट यू आर नॉट एबल टू जज, it means that you are not able to trust your own judgment about a person. You think that you are not a good judge, you can't read people, so conveniently you put everyone into that doubtful list, because आप अपने कन्विक्शन नहीं आपके अंदर कि मैं जो सोच रही हूँ वो सही होगा। मतलब डर लगता है ना, फटती है कि भाई अब कहाँ से आ जाएगा धोखा, तो इसको मैं डाउटफुल लिस्ट में ही रखता हूँ सेफ साइड के लिए। ये मैंने किया है यार, इसलिए मैं यहाँ पे आके इतना बोल रही हूँ, क्योंकि आई थिंक ये मेरे अंदर का भड़ास निकल रहा है आज की आई हैव टू टॉक अबाउट इट। मुझे इस बात का डर नहीं था कि कोई धोखा दे देगा या दे देगी, आई थिंक मुझे इस बात का डर था कि आई वोंट बी एबल टू सर्वाइव इट। मतलब पता नहीं क्यों होता है ना, डॉक्टर के पास जाते इंजेक्शन लगाने के लिए, तभी भी जब इंजेक्शन लग रहा होता है तो वी काइंड ऑफ क्लोज आवर आइज और थिंक अबाउट समथिंग।
when we were kids. Similarly, whatever you see as a painful thing in your life, जब भी आप उससे go through करते हो तो you kind of clench yourself very tight and you kind of pray to God कि मैं निकल जाऊँ बस इससे. मतलब वहाँ भी you trust that क्षमता है, मैं सह लूँगा या सह लूँगी, मैं निकल जाता हूँ. It's like ripping off that band-aid. बट पता नहीं क्यों दुनिया में इतने सारे दुख झेलने के बावजूद भी ट्रस्ट और बिट्रेयल को झेल नहीं पाना और उसके आने का डर इतना ज़्यादा क्यों होता है. मतलब रियली दिस इज़ समथिंग दैट रियली नीड्स द वर्क, द हीलिंग, एंड वी रियली नीड टू एक्नॉलेज एंड देन थ्रो इट आउट ऑफ द विंडो गाइस, बिकॉज ये रह के ना हमें जहर बना देगा. क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये गेम है, किसी ने मुझे उल्लू बना दिया, वो गेम है, मतलब वो जीत गया और मैं हार गई. ऐसा लगता है, मुझे भी लगा था कि मतलब अगर वो धोखा दे पाया मुझे, मतलब वो जीत गया मैं हार गई, तो मैं कैसे हार जाऊँ. सो लेट मी बी वेरी विजिलेंट इन दिस गेम सो दैट आई कैन एक्चुअली कैच द रेड फ्लैग्स देन एंड देयर, एंड आई कैन ऑलवेज बी हाइपर विजिलेंट, एंड पूरे टाइम मैं अपने डिटेक्टिव मोड में रहूँगी ताकि मुझे पता चल जाए. येस, I know you guys will say that it's not about being scared of vulnerability or this and that. It's about being smart. I get it, smart होना है. You have to be, मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम बुद्धू बन के बैठ गए और लोगों ने धोखा दे दिया और चले गए. मैं यहाँ पे उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जिनका ये वाला कुछ ज़्यादा ही एक्टिवेटेड है. लाइक जिसका ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता, और दैट शोज़ एज अ बिग प्रॉब्लम इन मैनी डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ. सो इन दैट केस व्हाट आई फील इज़, हमें ये जो डर है ना कि धोखा हो गया मेरे साथ तो क्या हो जाएगा, तो वो दर्द क्या हम नहीं सह पाएंगे, हम एकदम ख़त्म हो जाएंगे उस दर्द से, क्या हमें वैसा लगता है, इसीलिए हमें इतना फियर है उस चीज़ का. येस, दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन्स, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स. हमें डर लगता है, हमारी फटती है कि हम उस दर्द को नहीं झेल पाएंगे. प्रॉब्लम्स तो है, बट मैंने ये भी रियलाइज़ कर लिया है कि इसे हील करना बहुत ज़रूरी है. बट हाउ डू वी हील? हीलिंग होगी कैसे इसमें? बस कैसे भी करके एक चीज़ की हिम्मत अंदर लानी है कि I have to stop controlling the outcomes and no matter what they do, I'll be fine. अगर वो हुआ भी जिसका मुझे डर है तो मैं सॉर्टेड हूँ ब्रो, मैं ठीक हूँ, नहीं डरना है मेरे को. आई डोंट केयर, आई डू नॉट केयर, बिकॉज बुरा लगेगा और बुरा लग भी जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊँगी, बिकॉज इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस. हमें लगता है कि धोखे के बाद जो हम गड्ढे में चले जाते हैं ना इमोशनली, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और हमें लगता है बहुत टाइम लग जाएगा उभरने में, मूव ऑन नहीं हो पाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे इमोशनली, ये सब लगता है. और मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे लगा है. एंड उस चीज़ से उभरने का एक ही रास्ता है, दैट यू गो फॉर हीलिंग, एंड हीलिंग इज़ द ओनली वे टू गेट दिस पैटर्न आउट ऑफ योर विंडो एंड स्टार्ट accepting things, being little vulnerable and be open with the flow of life कि जो हो रहा है होने देते हैं. अगर वो होगा तो भी मैं ठीक ही रहूँगी. इट्स ओके. ठीक मतलब ये नहीं कह रही हूँ खुश रहूँगी, मैनेज हो जाएगा. इट्स ओके. तो जो करना है कर ले भाई. इवन इफ़ यू एंड अप ब्रेकिंग माई ट्रस्ट, इट्स नॉट गोइंग टू टॉपल मी और एनीथिंग. इट्स गोइंग टू कीप मी अलाइव. सांसें चलेंगी, अभी भी चल रही है, तभी भी चलेगी. वी विल कंटिन्यू ब्रीदिंग इवन आफ्टर गेटिंग बिट्रेड द सेम वे वी वर ब्रीदिंग देन. द ब्रेथ इज़ नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर. यू विल लिव. इट्स नॉट लाइफ थ्रेटनिंग. सो बस खुद को ये फील करवाना है, ये बिलीव करवाना है, कन्विंस करवाना है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है. मतलब यार क्या क्या डर होते हैं लोगों के, कितने सारे फियर्स होते हैं, फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ वाटर. नाउ दिस वीडियो हैज़ कम्प्लीटली बिकम अबाउट द फियर ऑफ बिट्रेयल. मतलब इतना खतरनाक लगने लगा है हमें बिट्रेयल इमोशनली दैट हम उभर नहीं पाएंगे और हमें ये सब फील होता है. इट्स हाई टाइम दैट वी गेट इट आउट ऑफ द विंडो. मुश्किल है, ईजी तो नहीं है, बट फिर भी व्हेन यू रिमाइंड योरसेल्फ दैट आपके फिजिकल बीइंग में कोई एरर नहीं आने वाला, यू विल कंटिन्यू लिविंग द वे यू आर लिविंग. सो इस चीज़ का डर थोड़ा कम हो सकता है. दैट्स व्हाट आई फील. यू जस्ट हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ दैट no matter what the other person does, I'll be fine. I have been fine and I will be fine. I'll find a way, no matter how dark the situation looks, to cope with it and to come out of it. Easy नहीं है, but हो जाएगा. And इस वीडियो का मतलब ये बिल्कुल भी मत निकालना that I am telling you guys or asking you guys to be very naive. 100% सबको ट्रस्ट कर लो, ब्लाइंड ट्रस्ट दे दो सबको. No, that is not what I am here to vouch for or tell you guys to do. So you have to be little balanced in that also. पूरा नाइव होके हम 100% ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन you have to understand the difference between blind trust and open trust. पता नहीं मैं ये सब बोल रही हूँ, कब ये सब मैं एक्चुअली इम्प्लीमेंट भी कर पाऊँगी अपने लाइफ में, बट whatever, let's see.
we won't go for blind trust. Okay, blind trust yani ignoring the red flags. We are not going to go and do that. We are not going to ignore the red flags and just continue trusting someone blindly. No, we are not here for that. What we are here for is to extend an open trust. It's about understanding the fact that high emotional quotient means accepting that risk of getting betrayed and still keep your connection open and be brave enough to take it forward with that openness, because we can't experience deep connection without actually being open and vulnerable, because वो work ही नहीं करेगा. That won't work if you're not open and vulnerable with that person at the same time. You cannot experience deep connection without opening yourself up to potential disappointments. That's not possible. So we have to go through this cave, but if we go through in a balanced way, then I think we can get past this and see the light on the other side as well. Heavy that topic, but it was on my mind since quite some time. And thank you, आप लोगों ने सुना मुझे. And मैं बस इतना आपसे पूछना चाहती हूँ, when was the last time you found yourself in this pattern? जब आपको ये एक्चुअली ये रियलाइज़ हुआ कि एक पैटर्न है जहाँ आई एम नॉट एबल टू ट्रस्ट पीपल बिकॉज ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंसेस. How did this come to you? When did this realization happen to you? Okay, I'll be waiting for your stories in the comments. Okay, thank you so much for staying till the end of this video. And if you really want to connect with me again, feel free to become a part of this family by subscribing. Okay.